Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in practical organic chemistry. Today, our experiment is preparation of methyl orange, a pH indicator. It is used to differentiate pH of the solution. So when a solution has pH more acidic, it has different color, and from more acidic, when it goes to less acidic pH, then color of the solution is changed because of this presence of this indicator. So this methyl orange, it can be synthesized by diazotization reaction. Sulfonylic acid, it can be first converted into its salt form, and then salt is converted into diazonium salt, and diazonium salt is then is condensed with N dimethyl aniline to prepare the final dye. The chemical equation is, we have sulfonylic acid. The sulfonylic acid, it can be converted into its salt form by reacting with sodium carbonate first. So it means it is converted into O negative and Na positive first by reacting with sodium carbonate. It then react with NaNO2 in HCl to convert this amino group into diazonium salt. So we have SO negative, Na positive. Here we have N triple bond N. So this diazonium salt, it then condensed with N dimethyl amino N dimethyl amino benzene. Okay, so it will gives us our final product. This is methyl orange. Mechanism of this reaction I have discussed in detail in my previous experiment, where we have synthesized a red dye by reaction of डाइजोनियम साल्ट ऑफ एनिलीन विद बीटा नेफ्थोल. वहाँ मैंने ये इसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किया था कि जी आपके पास ये जो एमीन है, आप किसी भी एरोमेटिक एमीन को या आप जो है वो रिएक्ट करते हैं NaNO2 और HCl, इन दोनों के मिक्सचर से जो है वो प्रोड्यूस होता है इनसे जो नाइट्रस एसिड. सो फ्रॉम दिस नाइट्रस एसिड तो जो है वो नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा. दिस नाइट्रोसोनियम आयन एक्चुअली HNO2 से जो है वो दिस नाइट्रोसोनियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन. इट देन रिएक्ट विद दिस अमाइनो, देन वी हैव डाइजोनियम salt. So in this case, in my previous experiment हमने जो है एनिलीन यूज़ की थी, और यहाँ आप सल्फोनिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, और उसका जो अमाइनो पार्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस डाइजोनियम साल्ट. तो उसी तरह का रिएक्शन जो हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था कि आप NaNO2 HCl से HNO2 बनाएंगे, HNO2 की प्रोटोनेशन होगी, फिर जो है वो डिहाइड्रेशन होगी, नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो जनरेट होगा, और उस नाइट्रोसोनियम आयन पे जो है वो दिस नाइट्रोजन अटैक्स एट दिस नाइट्रोजन, एंड वी हैव this diazonium salt, and we know that this diazonium salt then it condenses with this N dimethyl amino benzene. So this pi electrons, they then attacks at this nitrogen, and this triple bond shifted to nitrogen. So the important point to diazotize this mixture or diazotization reaction or formation of dyes, we have to control the reaction temperature. आपने टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करना होता है, बिकॉज अगर टेम्परेचर जो है वो हाई होगा then there are chances for the decomposition of diazonium salt. So experimental steps which are involved in the preparation of this dye is, first we have this sulfonylic acid. We have 1.05 gram of sulfonylic acid.
So this sulfonuric acid is mixed with Na2CO3. ये आप जो है वो जस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ये 1.05 ले लें, ये जो है वो 0.26 ग्राम ले लें. ओके, सो दिस मिक्सचर वी हैव आप कॉनिकल फ्लास्क में. ये जो है वो आपने इसमें ये दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है. एंड देन ऐड वाटर अबाउट 10 ml आप इसमें जो है वो वाटर ऐड कर दें. देन जस्ट टू फॉर्म द सोल्यूशन ऑफ दिस सल्फोनिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट. जैसे ये सोल्यूशन बनेगा देन एसिड रिएक्ट विद दिस कार्बोनेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. तो क्लियर सोल्यूशन आपने जो है बनाना है. सपोज अगर जो है वो ये कुछ सोल्यूशन इट इज टर्बिड और ये जो है वो क्लियर सोल्यूशन नहीं हो रहा, देन यू मे हीट और वार्म दिस सोल्यूशन, warm it to form clear solution. So once clear solution is formed, then decrease the temperature. आप इस जो है वो टैप को वाटर इसकी बाहर अगर आप साइड्स पे जो है वो टैप वाटर से जो है वैसे जो है वो वॉश करेंगे या रिंस करेंगे बाहर वाली साइड जो है. देन यू डिक्रीज द टेम्परेचर. आप इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर लें अप टू 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन द सेकेंड reactant which is used for the formation of diazonium salt with this amino group is NaNO2. Then you have NaNO2 0.37 ग्राम. ये आप जो है वो ले लें. तो जो है वो एक सेपरेट बीकर में वी हैव ये जो है वो आप इसमें NaNO2 एंड देन 1 to 2 ml ऑफ वाटर से जो है वो वाटर में मिक्स कर दें. आपके पास ये सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा. देन पोर दिस सोल्यूशन. इसी सोल्यूशन को फिर आप जो है वो इस फ्लास्क में ऐड कर दें, ठीक है. देन स्टर दिस मिक्सचर स्लोली. आप इसको जो है वो ऐड कर लें एंड देन यू हैव HCl सोल्यूशन. आपको HCl जो है वो चाहिए होगा. देन अवर नेक्स्ट रिएक्टेंट इज HCl. You have 1.5 ml of HCl. आप जो है वो we have here बीकर में ले लें या आप कॉनिकल फ्लास्क में 1.5 ml of concentrated HCl. So if just decrease the temperature of this HCl. आप इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं इवन विद द हेल्प ऑफ सम आइस क्यूब. आइस जो है वो ले लें, कुछ आइस क्यूब इसमें ऐड कर दें जस्ट टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर. एंड देन दिस सोल्यूशन विच कंटेन NaNO2 एंड दिस सॉल्ट यू पोर स्लोली दिस सोल्यूशन टू दिस HCl सोल्यूशन. सो हेयर जब आप इसे जो है वो मिक्स करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो यहाँ बन जाएगा. ये जो आपका है डायज़ोनियम सॉल्ट ये यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा. बट जस्ट कीप इन माइंड स्लोली ऐड दिस NaNO2 solution and this which contain salt of this sulfonuric acid to this HCl solution and also check the temperature of this mixture. temperature ये जो है वो above 10 और 12 और 15 और 20 और 30 ये टेम्परेचर इसका हाई ना हो. अगर ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा देन डायज़ोनियम सॉल्ट इज डिकम्पोज्ड. एंड देन द नेक्स्ट अवर रिएक्टेंट इज N-dimethyl aniline. We have this is N-dimethyl aniline जिसके साथ हमने डायज़ोनियम साल्ट जो है वो प्रिपेयर करना है. सो दिस N-dimethyl aniline it mixed with glacial acetic acid. So it has 0.65 or 7 ml or 5 ml in just 2 to 3 ml of glacial acetic acid. ये इसमें जो है वो आप मिक्स कर लें. देन मिक्स्ड बोथ दी सोल्यूशन. आप जो है वो ये N-dimethyl एनिलीन का सोल्यूशन जो है वो आप इन दोनों सोल्यूशन को दिस डायज़ोनियम साल्ट एंड N-dimethyl amine आप इसे जो है वो इसमें ऐड कर लें.
सो स्लोली ऐड दिस सोल्यूशन और अगेन जो है वो मॉनिटर द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर जो है इसका एक्सीड नहीं करना चाहिए। देन दिस आफ्टर यू मिक्सड all this NN dimethyl aniline solution to this diazonium salt, then by diazotization we have our final product methyl orange, and then इस methyl orange आप देखेंगे यहाँ कलर ऑफ द सोल्यूशन ये चेंज होगा और प्रेसिपिटेशन जो है हो जाएगी। अगर ये प्रेसिपिटेट्स जो है वो बहुत फाइन प्रेसिपिटेट्स हों देन आपके पास ये जो डाई है ठीक है, वो जो आपके पास ये डाई है इसमें आप कुछ NaOH का सोल्यूशन जो है वो ऐड करते हैं, 20% NaOH का सोल्यूशन, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसका जो है वो साल्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो हीट द सॉल्यूशन, ये जो है वो व्हेन ऑल द कंडेंट्स दे आर थॉरोली मिक्स्ड इन दिस मिक्सचर, आपके पास ये क्लियर सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। देन यू डिक्रीज द टेम्परेचर, एंड इफ प्रेसिपिटेशन या इसकी जो क्रिस्टलाइजेशन है आपकी जो डाई है अगर वो नहीं जो है वो हो रहे, देन यू मे ऐड NaCl 2 to 3 ग्राम जो है वो, या समटाइम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इसमें जो है ऐड करेंगे देन इट हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस मिथाइल ऑरेंज, एंड देन यू फिल्टर दिस precipitate and then dry these precipitate and wait to calculate the percentage yield. So this methyl orange it is used as a pH indicator. इसमें जो है वो अगर हाई एसिडिक सपोज pH जो है वो 3.1 है then it is red in color, और अगर आप इसकी pH जो है वो 4.4 तक जो है वो इंक्रीज करते हैं then from red to yellow जो है वो इन बिटवीन यहाँ ऑरेंज कलर जो है वो इसका होगा। सो इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम रेड टू ऑरेंज एंड देन येलो। ठीक है, सो बाय फॉलोइंग सेम प्रोसीजर, अगर आपके पास इफ यू वांट टू सिंथेसाइज मिथाइल रेड देन सेम प्रोसीजर इट इज followed to synthesize this methyl red. For methyl red is also a pH indicator. ये भी जो है वो आपके पास pH इंडिकेटर है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, इसकी जो वेरिएशन है इट स्टार्ट फ्रॉम 4.4 to 6.2 or 6 above 6. So again this methyl red it changed its color from red to yellow. So at 4.4 pH or 4.12 pH it is red in color, and at 6.2 higher pH it is yellow in color, and in between it is orange. It is orange in color. Okay, so this methyl red it can be synthesized over reactants. They are anthranilic acid. Instead of sulfonilic acid we have 2-amino-benzoic acid. So it means आप 2-amino-benzoic acid का अमाइनो ग्रुप यूटिलाइज करते हुए इसका जो है वो साल्ट और डाइज़ोनियम साल्ट बना लेंगे। So here we have डाइज़ोनियम साल्ट, और फिर इस डाइज़ोनियम साल्ट को जब आप कंडेंस करेंगे NN डाइमिथाइल एनिलीन और अमाइनो बेंजीन, जब आप इसके साथ कंडेंस करेंगे देन यू हैव दिस फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज मिथाइल रेड। So it means we can synthesize any dye or diazo compounds by following the same procedure. आपके पास जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इज डाइज़ोनियम साल्ट, और दूसरा आपके पास कोई एरोमेटिक पार्ट है जिसके साथ आप उसे जो है वो कंडेंस करते हैं। सो फॉर प्रेपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम साल्ट यू हैव अमाइनो ग्रुप, और वो अमाइनो ग्रुप जो है वो NaNO2 HCl के साथ
रिएक्ट करके आपको जो है वो डाइज़ोनियम साल्ट दे देगा एंड देन यू कंडेंस विद दिस। अब यहाँ हमने जो है वो इस एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ जो है वो कंडेंस किया। वी कैन कंडेंस विद नाइट्रो एनिलीन और विद एनी अदर अमाइनो ग्रुप। ये मैं पिछले अपने एक्सपेरिमेंट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो मिथाइल ऑरेंज and methyl red, both these dyes they can be synthesized just by changing the amino part of this diazonium salt. Here we have sulfonylate acid amino part, here you have 2 amino benzoic acid, anthranilic acid amino part use करके हम diazonium salt जो है वो बनाते हैं. So this is all about the preparation of methyl orange and methyl red. I will discuss some more experiment in my upcoming lectures. Thank you very much.